or that is a solution to get rid of the dukkha. Anybody who would be involved is bound to be dukhi, and anybody who is not involved is bound to be free of dukkha. That is the hypothesis, theory put forward by the scriptures. So if we want to come out of dukkha, step number 1 is to step out with the identification. Step out of the identification. Whatever one has identified oneself with, one has to come out of it. If the identification is with the body, come out of it. If it is with the mind, come out of it. And all those, the rest which are related to the body, one has to come out of it. And this whole process of coming out is the purpose of study of the scriptures. They help us. At least this help is available. We must consider ourselves fortunate. नहीं तो बाहर तो इतनी सारी हेल्पलाइन है. सब हेल्पलाइंस को हम यूज करते रहते हैं. अब तो ऐसी मतलब परिस्थिति आ गई है कि एक मास्टर हेल्पलाइन होनी चाहिए जो ये बताए कि वो वाली हेल्पलाइन का क्या नंबर है, उस हेल्पलाइन का क्या नंबर है, उस हेल्पलाइन का क्या नंबर है. और फिर मुझे याद रहना चाहिए कि ऐसी कोई हेल्पलाइन है. वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. याद तो रहे ना कि हेल्पलाइन, फिर उस हेल्पलाइन से उस हेल्पलाइन. For a spiritual sadhak, scripture is a helpline. One can count on it. And the terms like 24/7, this is the only 24/7 helpline. For any kind of dukkha. It deals with both prevention and treatment of dukkha. And it also suggests promotive level, that you be in such a state that you are above the dukkha. If the dukkha is already there, then you have to cure it. Learn some steps to prevent the dukkha likely to come in the near future. But the best students go for a permanent immunization against dukkha. अब मुझे दुख आ ही ना सके, मुझे सता ही ना सके. उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में विटनेस को देखना है. Not that the understanding of this word witness that we carry with us. कि स्क्रिप्चर्स मेंशन कर रहे हैं कि विटनेस बनते ही आपके दुखों का नाश हो जाएगा. और अगर विटनेस बने रहोगे तो दुखों से दूर रहोगे. एक्सप्लोर तो करें, ऐसी क्या रहस्य छुपा है इस विटनेस के अंदर जो हमने नहीं अभी तक पहचाना. जैसे घट से आवृत आकाश घटाकाश है और अनावृत आकाश महाकाश, वैसे ही तीन अवस्थाओं वाले चित्त से अविच्छिन्न
चेतन को दृष्टा कहते हैं और अन्नविच्छिन्न चेतन को ब्रह्म। The space which is inside the walls of the pot is the inside space, and the space which is outside the walls of the pot is an outside space. Similarly, you have to consider intellect as a pot. Just meditate on your intellect as a pot. और उस इंटेलेक्ट के अंदर जो है वो विटनेस है, और उस इंटेलेक्ट के बाहर जो है वो ब्रह्म है. दिस इज अगेन वन स्टेप. लेकिन वो इंडिविजुअलिटी जिसको हम जानते थे, जिस इंडिविजुअलिटी को हम ओन करते थे, प्रैक्टिस करते थे, वो इंडिविजुअलिटी शुड ग्रेजुएट टू बिकम ए विटनेस फर्स्ट. जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर को पूरा दोबारा फॉर्मेट करा दिया. जो आप दुकान से सॉफ्टवेयर लेके आए वो तो इंटेलेक्ट का सॉफ्टवेयर था, लेकिन अब जब आपको समझ में आ गया, आपने उसको फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया और उस सॉफ्टवेयर को आपने विटनेस सॉफ्टवेयर बनाया. दैट इज कंडीशन नंबर 1. then you would say that this is inside the, because that new formatting is inside the previous software, because that software will no longer perform as when it was bought. Now it will perform by the new format. तो वो जो विटनेस अंदर है इंटेलेक्ट के, और इंटेलेक्ट के उस पार जो ब्रह्म है, जैसे पॉट के अंदर वाली स्पेस और बाहर वाली स्पेस एक्चुअली बाय सिंपल अंडरस्टैंडिंग दे आर वन. The walls of the pot do not separate the space because the wall itself exists in the space. आप ये कह सकते हैं आधी अंदर वाली आधी बाहर वाली. अब एक पॉइंट है जहां अंदर और बाहर वाली स्पेस मिलती है पॉट की वॉल के अंदर, तो मतलब ये हुआ कि स्पेस एक ही है. By that understanding that space एक ही है, the student has dissolved the walls of the pot. Because now he thinks, oh, a continuous space. अच्छा. उसी प्रकार अगर इंटेलेक्ट के अंदर विटनेस को मान लिया और इंटेलेक्ट के बाहर ब्रह्म को मान लिया, तो फिर लॉजिकल कंक्लूजन ये होगा कि ब्रह्मन और विटनेस एक ही है. जहां पहले हमने पॉट की वॉल्स को डिसॉल्व कर दिया, अब यहां इंटेलेक्ट विल गेट डिसॉल्व्ड. And the statement is Brahman alone is. So one posits 3 states, then try to stand separate from the 3 states as witness, because witness is the only one who has witnessed the 3 states. And unless the witness witnesses the 3 states, one would not be able to describe the 3 states.
there is a experience. Witness is not the experiencer of the experience. It's a very subtle point. So far we have been saying if there is experience, there is a experiencer, the act of experiencing, and that which is experienced. But here what we are saying is this witness does not experience. The witness witnesses the experience taking place. And it is fully satisfied that way. Just like I see my right hand picking up the pen and putting a signature on a piece of paper or a checkbook. अब उंगली ने साइन किया, मैं बोलता तो यही हूं कि मैंने साइन किया. So I get the same satisfaction as though I have signed, though my unglis have signed. Take one step further. Witness है, जब उसके सामने ये एक्सपीरियंस होता है, सही सेटिस्फैक्शन मिलती है जैसे उंगली के साइन करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है. हाँ, हो गया, एक्सपीरियंस हो गया. पर अब मेडिटेशन के बाद उसको पता है कि मैंने एक्सपीरियंस को देखा है, और देखना ही अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है. ये ऐसी पूर्णता है जो सब कुछ दिखा सकती है. शर्त ये है कि किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, किसी चीज को देखना नहीं आंखों से. क्यों? क्योंकि ये जो देखने वाला विटनेस है, वो उससे अगर आप ईमानदारी से पूछेंगे, वो कहते मैंने सब कुछ देख रखा है, मुझे तुम क्या नया दिखाओगे. पता है मैं एटर्नल हूं. बिफोर क्राइस्ट मैं था, 200 एडी में मैं था, 600 एडी में मैं था, 800, 1600, 2000, सब में देखा हुआ मैंने. इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, सब देखा हुआ मैंने. बार्टर सिस्टम, ट्राइबल लाइफ, सब 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 कुछ देख रखा है. टाइम निकाल के बैठना पड़ता है. कहीं ना कहीं एक साधारण से सीरियस अटेम्प्ट से भी ये है. जैसे ये जगह बोलना ये पड़ता है कि मैं द्वारका में पहली बार आ रहा हूं. जब आप द्वारका जाते हैं लगता है बहुत बार देखा हुआ इसको. हम कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता, ये तुम्हारा इमेजिनेशन है. हो सकता है इमेजिनेशन से ज्यादा हो. ये अमेरिका से आया है. ही इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका, इज कमिंग टू न्यू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम. तो वही है जो भाग के गया था दिल्ली से. कब? 700-800 साल पहले गया होगा, या तेरे जीन्स गए होंगे. पहचानने की कोशिश करनी चाहिए जीन्स को. it's a good exercise to get to this truth.
मैंने अगर किसी की जीन को देख रखा है, उन जीन्स ने मिलकर के एक बॉडी बना दी, उसको स्टैंप लगा दी, अमेरिकन वीजा, अमेरिकन पासपोर्ट, अरे आई एम सीइंग फर्स्ट टाइम। डोंट से दैट आई एम सीइंग, आई एम मीटिंग यू द फर्स्ट टाइम। वो कहता है आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, स्माइल कर दो, because I am meeting you, I have met you many times, you may be meeting me for the first time, I have met। जो भी मिले वो कहे मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, मैं तो आपसे बहुत बार मिल, ये कैसे हो सकता है? मैं जब आपसे पहली बार मिल रहा हूँ तो आप मुझसे कई बार कैसे मिल चुके हैं? तेरे पैदा होने से पहले तेरे दादा से मिला था मैं, उससे पहले तेरे परदादा से मिला था। ब्रह्मन की गोदी में हम कट्ठे रहा करते थे, कट्ठे खेला करते थे। फिर तूने छलांग लगाई, फिर ऐसे 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 ऐसे। कोई सोचता है मैं शिवाजी की संतान हूं, कोई कहता है मैं मुगल एम्परर की संतान हूं। लगता है देखा हुआ है। बड़े वो तलवार, कई म्यूजियम्स में जाओ, अरे ये तो यूज किया हुआ, हमने कुछ हाथ में कुछ ऐसा लगता है इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये वो विटनेस इसलिए विटनेस करता है, उसने सब कुछ कर रखा है। घड़े के रहने या ना रहने का आकाश पर जैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही स्थिति चित्त के रहने या ना रहने पर भी है। So the conclusion therefore is that Brahman alone is, and that small component of Brahman is here called as witness। अपने आप को विटनेस नहीं बनाना चाहते, अगर आपके बारे में भगवान को जानने की जिज्ञासा, आप बताइए भगवान क्या कर रहे हैं? विटनेस ही तो कर रहे हैं। जिस गाना है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, भगवान कहता है देख तेरे, मतलब यू आर ट्रीटिंग मी एज ए विटनेस, मैं देखूं? तुम तो संसार में एक्टिंग करो और मैं ऊपर से बैठ के देखूं। बच्चों को डराते हैं, भगवान देख रहे हैं, मतलब करना नहीं है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। अरे भगवान देख रहे, भगवान पकड़ के नहीं हाथ को रोक सकते। तो ये जो हमारी मान्यताएं हैं, दे आर बेस्ड ऑन द ट्रुथ। इफ गॉड इज ए विटनेस, सो उसका एक हिस्सा जीवात्मा वो कैसे नॉन विटनेस हो सकता है? सिर्फ हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये विटनेस जो है, ये विटनेस को हम एक पैसिव नॉन एक्टर उस तरीके से गलत समझते हैं। हमें ये समझना है कि जिसने सब कुछ कर रखा हो, ऐसा नहीं है कि वो एक्ट नहीं कर सकता, वो क्यों करे? जब मैंने खाना खा रखा है, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खाना क्यों खाऊं? अगर तुम तो खाते नहीं हो, तुम तो खाने को सिर्फ देख रहे हो। अरे भाई मेरा पेट भरा हुआ है, अब ये मैं किसी को कैसे बताऊं? दैट इज अ बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द विटनेस। कि साधना करते करते समझ इतनी विकसित हो जाए कि आपको लगे कि सारी इंद्रियों ने जो भी भोजन देना है वो मैं खा चुका हूं, कोई भी इंद्रिय का कोई भी भोजन मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू सी एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हियर, आई डोंट वांट टू लिसन। बट इफ some sights want to come, let them come. If some sounds want to come and touch my ear, let them come.
sounds and the sights don't ask a response from our side. हम खुद ही बीच में घुस जाते हैं. आप कैसे हो? ठीक है. नहीं मतलब तबीयत ठीक है ना? हाँ. और बाकी सब जिंदगी कैसे चल रही है? ठीक है. कोई काम शुरू किया? तो जब आदमी 3, 4, 5 मिनट इस तरह के जवाब देता है तो डर लगता है ये आदमी कहीं वापस ना चला जाए. चला जाए तो चला जाए. अब वो आदमी वापस ना चला जाए, उसको एंगेज करने के लिए मैंने ना एक तो रूटीन बना लिया. सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ. 5 बजे उठ के मैं बस फिर पूरी की पूरी कहानी शुरू हो जाती है. हमने क्या किया, वो आदमी उठ के वापस ना चला जाए इसलिए हमने आधा घंटा उसको भाषण दिया अपना. और पता लगा अगले दिन उस आदमी की डेथ हो गई. संसार से ही वापस चला गया. हम तो सोचे घर से वापस चला जाएगा. अरे वो वापस ले आ. मैंने आधा घंटा जो तेरे को प्रवचन दिया वो उसकी पेन ड्राइव में तो मुझे दे दे सॉफ्ट कॉपी. कोई और आएगा तो उसको मैं फिर लगा दूंगा. बार बार हर किसी पड़ोसी से, हर किसी से यही बात करते जाओ, हर मिलने वाले से यही बात करते जाओ. इसलिए दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग ए विटनेस. लोगों को बहुत शौक है बोलने का. उनको बोलते हुए देख के ही ना पेट भर जाता है. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद. धन्यवाद.